So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the Hindu analysis of Saturday, that is 31st May 2025. So I hope you all are aware that we are having the Hindu analysis at 8 p.m. every day. So I hope you all, which is actually generally taken by Govind sir, but on Saturday actually I take the class. So let us begin with today's class. So today is 31st May, right? So let us begin with today's class. So on the first page, there was an article talking about GDP, right? We will discuss it. So today is Saturday, 31st May. The first article was talking about the GDP growth at 6.5% in 2024-25 fiscal year, slowest since pandemic. So this we will discuss. This is an important article, of course, related with economics. And this one, Shah pledges. So Mr. Amit Shah, the Home Minister of India, he has gone to Pooch district and Jammu and other places. Like he had gone to Jammu and Kashmir, and he has helped. He has pledged that he will give help also. Okay. So these are the things that we will be discussing today. Yes. So am I audible, visible? Is everything fine? आवाज आ रही है? Voice clear है? Yes. Good evening, Priyanshi. क्या हाल है सर? हाँ बढ़िया है. आप बताओ. How is your preparation going on? कैसा चल रही है आपकी तैयारी? Yes, I think voice is clear. Everything is fine. So let us begin with this class. GDP growth at 6.5% in 2024-25. Can you please tell me what is a fiscal year? ये बता सकते हो? ये क्या होता है? कब से कब तक चलता है? This I have taught. I think in paid classes भी बताया है. And please tell me, fiscal year क्या होता है? हाँ, 31st मार्च से नहीं, 1st अप्रैल से, 1st अप्रैल टू 31st मार्च है ना, 1st अप्रैल 2024 टू 31st मार्च 2025. इसको क्या कहेंगे हम? This will be called as FY 2024-25. ठीक है? और इसको शॉर्ट में लिखते हैं FY 25. ओके? This you should be knowing it. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, कई बार अगर आप जैसे इकोनॉमिक टाइम्स या कोई और न्यूज़पेपर पढ़ोगे, या कई बार वो क्या करते हैं ना, ये इवन द हिंदू में भी इसको हटा देंगे, लिखेंगे FY 25. ठीक है? That is same. FY 25 means FY fiscal year 2024-2025. तो आपको इतना पढ़ने समझने आना चाहिए, है ना? So in the entire year the growth was 6.5% of the GDP. ठीक है? And it was slowest since pandemic. Pandemic के बाद पहली बार ऐसा देखा गया कि इतना कम growth rate हुआ. Because pandemic we had seen the decline in growth because the lockdown etc. happened. ठीक है? अच्छा, एक दो चीज और बताते हैं. यहाँ पे देखो एक टर्म लिखा है रियल जीडीपी. व्हाट इज रियल जीडीपी? ये क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? ये सब टर्म्स पता होने चाहिए. व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप गो एंड ओपन द CLAT 2020 पेपर. दे हैड गिवन वन पैसेज ऑन इकोनॉमिक्स. ठीक है? ये CLAT 2020 में का पेपर उठा के देखना. व्हेन द सिलेबस और द पैटर्न गॉट चेंज्ड, CLAT 2020 में they had given one passage on economics and they talked about these terms like foreign exchange reserve, long term repo operations. तो आपसे उम्मीद किया जाता है सर, मॉक में जलियांवाला बाग का पैसेज में क्वेश्चन था. ओह ग्रेट, कृषि सचदेवा, वेरी गुड. सो आई होप you would have solved that without adjusting it. नहीं प्रियांशी, उल्टा, you are actually telling the reverse. रियल जीडीपी, जहां पे भी वर्ड रियल आ जाएगा ना, इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड. ठीक है? ये याद रखना. तो अगर हम कहेंगे रियल जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बताया जा रहा है. नॉर्मली इज नॉमिनल जीडीपी, है ना? नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी एट करंट प्राइस, मतलब विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, करंट प्राइस पर. और रियल जीडीपी मतलब कांस्टेंट प्राइस पर, एक बेस ईयर ले लिया आता है ना, कांस्टेंट प्राइस. सो बाय ना, दैट इज व्हाट द आइडिया इज. ओके? ठीक है? आई गॉट 4 इंच. ओह ग्रेट, वेरी गुड. हाँ, तो ये ख्याल रखिएगा. ठीक है? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में. ठीक है? अब देखो इसमें बात क्या करें. अच्छा, प्लीज टेल मी व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कम्स अप विद द जीडीपी एस्टिमेशन रिपोर्ट. Which organization and which ministry is associated with that? एक मंत्रालय भी उससे related, and that is written in the article. इस article में सब लिखा हुआ भी. What is that? Please tell me.
तो मॉनेटरी पॉलिसी का बेटी हो गया, नहीं मॉस्पी, राइट, वेरी गुड। हाँ देखो मैं दिखाता हूँ, there is a organization called as NSO, National Statistical Office, ये सब पूछ सकते हैं एग्जाम है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन actually is responsible, or it comes up with the GDP estimation numbers, ठीक है। मैं GDP estimation वर्ड यूज कर रहा हूँ, देखो एस्टिमेट्स होता है, कैलकुलेशन नहीं होता, बिकॉज़ एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया सकता है ना, एस्टिमेट किया सकता है ना। मतलब हर आदमी से जाके तो पूछा नहीं जा सकता है कि आपका कितना गुड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, पर जोड़ा जा सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट दिस इज एक्चुअली डन, है ना। अब देखो जैसा रियल जीडीपी लिखा है, यानी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इन्हें कांस्टेंट प्राइस ले लिया गया है, कौन से ईयर का, तो उसके लिए बेस ईयर होगा, तो बेस ईयर इज 2011-12, इट मींस जो 2011-12 में प्राइस होगा प्रोडक्ट का, उसी प्राइस को आज भी कैलकुलेट किया जा रहा है, इवन फॉर 2024-25 फिस्कल ईयर, सो दैट इन्फ्लेशन का जो इंपैक्ट है उसको रिमूव किया जाए। सो रियल जीडीपी मींस इन्फ्लेशन एडजस्टेड, है ना, मतलब इन्फ्लेशन को हटा के, है ना, रिमूविंग इन्फ्लेशन, सो इन्फ्लेशन एडजस्टेड, और द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वुड बी रिमूव्ड, दैट इज द आइडिया। तो उसमें एक बेस ईयर ले लिया आता है और उसी के प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स याद रखनी होती है प्रियांशी, कैबिनेट मिनिस्टर इज मोर देन एनफ, आई थिंक, ठीक है, जनरली फाइन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। अब आप देखो गौर से, नाउ इफ यू सी इट केयरफुली, दिस इज द डेटा ऑफ द जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ, है ना, विद द बेस ईयर 2011-12। अब देखो ये सडन डिप का हुआ, ये देख रहे हो, ये दिस वन, व्हाट वाज द रीजन, अगर आप गौर से देखोगे ये वाला हिस्सा 2020-21 का Q1 स्पेशली Q2 वगैरह इंपैक्ट हुआ था, एंड द रीजन वाज वेरी सिंपल, बिकॉज़ देयर वाज लॉकडाउन, याद है, फर्स्ट वेव, है ना, फेज 1 कोविड वेव कहेंगे ना, वेव 1 कोविड, ओके। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ना, अच्छा आप पूछ रहे हो कि इसमें देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर अगर इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं तो जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, अदरवाइज लेस चांसेस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बीइंग आस्क्ड, ठीक है। I have made a separate video on ministers, go and watch that on the YouTube now, ठीक है। सो अब ये बता रहे कि नीचे आराम से गिरा, फिर ऊपर हुआ, फिर इंप्रूवमेंट हुआ, फिर लाइक दिस, है ना, these are the things you should know। अब आप देखो, लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आप देखोगे 2024-25 क्वार्टर 1, the growth was 6.5%, we are talking about अप्रैल मई जून क्वार्टर का, दिस इज क्वार्टर 1, अप्रैल मई जून ऑफ 2024, ठीक है। then quarter 2 is 5.6%, so this is अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर of 2024, ठीक है, 5.6% growth, है ना। the next is Q3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024, है ना, 6.4% growth। the next is 7.4% growth 2024-25, है ना, so this is actually जनवरी फरवरी मार्च ऑफ 2025 now, ठीक है, ये 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2024 लिख रहे थे, बट here it is 2025 because Q4 goes in the next year, 7.4%, और नेट निकाल के जो 6.5% ग्रोथ हुआ, यानी पूरे साल का of the entire fiscal year 2024-2025, ठीक है, that is what you should be knowing about, ठीक है। तो ये रियल जीडीपी डेटा है, मॉस्पी का डेटा है, एटसेट्रा, that is what you should be knowing। तो क्वार्टर 4 में 7.4% ग्रोथ है, बट ओवरऑल इन द लास्ट फिस्कल ईयर 6.5% ग्रोथ है, व्हिच इज द स्लोएस्ट सिंस पैंडेमिक। जैसे पैंडेमिक में झटका लगा था, मतलब इकोनॉमी डाउन हुई थी, उसके बाद पहली बार इतना कम हुआ, दैट इज व्हाट यू शुड नो, ठीक है। So these are the things. This is actually Mr. V. Anand Nageshwaran is the Chief Economic Advisor of India, who is instrumental in writing economic survey. And I hope you are aware of that. We have taken a class on economic survey also. Okay, let's move on further to the next topic. Mr. Amit Shah pledges help for shell hit area. Shell मतलब क्या होता है? What is shell? Shell जो होता है ना एक तरह का मतलब shelling, आप समझते हो ना? This is actually एक तरह के बंदूक की गोली, जो भी कह लो आपको, I don't know the exact Hindi word for that, but this is artillery type thing, हाँ, yes, you can say firing, etc. A sort of a victim of the firing. So what happened was, I hope you all are aware of this. We have seen operations in Sindoor, and after that we had seen conflict also for a few days. तो यहाँ पे पूंछ है, तो वो एकदम सामने है ना बॉर्डर के. So whenever there is shelling, of course the first victim would be these people of this region.
हाँ, गोलीबारी हिंदी में कह सकते हो. Yes. So basically that is what is being talked about. So shelling, he had visited shelling affected areas like in Poonch, where actually the people, the common people became the victim of that. That is what is being talked about here. So on the night, terror headquarters and other centers in Pakistan, occupied Kashmir and Pakistan were destroyed in response to the cowardly Pahalgam attack. I hope you are aware of these things. इसमें हमको I think explain करने कुछ नहीं, you know all these things. Okay. Now since we are talking about Operation Sindoor, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, I have made 2 specific videos related with Operation Sindoor. ठीक है? What are those? तो सबसे पहले subscribe to the channel, go to the live section. इसमें नीचे move करना, scroll down. These 2, INS विक्रांत वाला और ये वाला. देखो इसमें लिखा है S-400 Rafale jet Scalp missile. So these 2 were in the news. ठीक है? तो ये दोनों देख लीजिएगा वीडियो because these 2 are important from exam point of view. मैं guess कर रहा हूँ कि there will be one passage on Operation Sindoor in this in the upcoming exam. बहुत highly likelihood है कि there will be. ठीक है? उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, है ना? Let's move on to the next one. देखो इसमें फिर आर्टिकल आ रही है, एडिटोरियल भी, है ना? पाकिस्तान से इंडिया वॉर. So these are the things. It has been written by former IB chief, former national security advisor, former governor of West Bengal. ठीक है? So it's written as India reflects the outcome of brief military conflict with Pakistan. So that is what he is talking about, like Operation Sindoor and those things associated with that. It may be worthwhile to ponder over the current reality that even as India's culture diversity sweep of history may be unparalleled in a civilization context. ठीक है, नहीं कर अब इतना डिटेल नहीं जाना इसमें. हाँ, these are the philosophies, है ना? Bleeding India by 1,000 cuts. This is actually a strategy of Pakistan to actually attack. Bleeding India by 1,000 cuts का मतलब है कि they cannot defeat it completely, so they send like proxy war type something. Like doing terrorism, cross-border terrorism or something like that. So this ये term अक्सर news में आता है newspapers में. So that is what he is saying, that this is the strategy of Pakistan. The very existence of a secular democratic India appears to be an anathema. Anathema मतलब उनके लिए ये नई चीज है ना? So India is secular democratic in the sense कि in India the constitution believes that people of all religion, race, caste, gender are all equal. There is no discrimination and all. So that is why he's saying it is anathema to Pakistan, because for them it is something new. That is what is being there. Today is fashionable to talk about the disintegration of world order, the deepening silence of the world to the genocide taking place in Gaza. Deepening silence मतलब silent है, लोग कुछ बोलते नहीं है जब whenever there is genocide, let's say, happening in Gaza with innocent civilians being killed at an alarming rate. Contrast with din and noise and the numerous efforts at peace being made to end conflict. तो बता ये रहे इनके हिसाब से, ऑथर के हिसाब से, यूक्रेन में बहुत कोशिश किया गया वॉर रोकने के लिए, but there is not much being done in Gaza. So that is what he is talking about, that there has been dichotomy. Dichotomy मतलब दो अलग double standard sector type thing, यहाँ पर उस सेंस में बता रहे हैं. So and the world has different standards when it comes to killing of Asian and European. हाँ, ये तो कई बार देखा गया. That actually we have seen, जैसे ये भी होता है, जैसे मतलब यूरोप में कुछ वॉर होता है ना, तो they declare it कि ये वर्ल्ड वॉर हो गया. Okay, and whenever there is a violence or whenever there is a killing in Europe or becomes victim, they start talking about it. लेकिन बहुत सारी सी जगह, खास के अफ्रीका में आप देखना, I have seen realize many times. अफ्रीका में बहुत जगह वायलेंस होता है, lot of places military coup happens. और कोई वर्ल्ड मीडिया उतना छापती भी नहीं. बुर्किना फासो में हो गया मिलिट्री को, हो गया माली में हो गया, सूडान में there is huge conflict happening for the past 2 years. I hope you are aware. ये सबको उतना ज्यादा अटेंशन नहीं मिलता है, like एशिया में, like we have seen the conflict in Gaza and all. So that is what he is saying कि इसमें भी dualism देखा गया. अगर एशिया कोई एशियन मरता है, like for example terrorist attack happened in India, so an Asian became a victim, तो उसको उतना मतलब सीरियसली नहीं लिया जाता. बट इफ यूरोप में कुछ होता है तो एक्चुअली उसको ज्यादा सीरियसली लिया जाता है. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. सो मतलब होता है ना कि जो ज्यादा रिच एंड पावरफुल है उनकी ज्यादा चलती है दुनिया में. दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, है ना? माइट इज अगेन बिकमिंग राइट. है ना? माइट इज राइट मतलब जिसके पास पावर है ना, देयर इज अ वेरी फेमस कोट, जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रांग, ना, कि जिसके पास ज्यादा ताकत होता है उसी का चलता है दुनिया में दबदबा. सो दैट इज व्हाट ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. यूरोसेंट्रिसिज्म एंड ऑल, a crucial subtext etc and all is Vladimir Zelensky. देखो ये पूछा था नाम एक बार CLAT के एग्जाम में ना, as bartered his critical. barter का मतलब क्या होता है? what is barter system? ये इकोनॉमिक्स से पढ़ा जाता है. yes, Krishi Satya. हाँ, dualism is thing, domestic law answer, different dualism supposed to be perfect. हाँ, dualism मतलब वही दोहरा मापदंड के साथ में, है ना? दो. खैर,
Here we are talking about barter system. barter का अंदर क्या हुआ, तो वो ऐसा बता रहे हैं कि यूक्रेन में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, तो उसने यूरोप को एंड वेस्टर्न कंट्रीज को दे दिया दोस क्रिटिकल मिनरल्स, and in lieu of that, in exchange of that, western countries like USA and other European countries are supplying them arms. तो बार्टर मतलब ये होता है ना, अच्छा तुम हमको ये दो, हम तुमको वो देते हैं, है ना. So that is what he's saying कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट उन्होंने बार्टर किया क्रिटिकल मिनरल टू यूएस in the war against Russia. In the Pakistan context, it is not being surprised that US interests in claiming to have brought peace in between India and Pakistan. अब देखो ये जो है, ये जनाब बोल ये रहे हैं, Donald Trump is again and again saying that I am the one who stopped the war. In fact, he has said for the past 10-15 days, he has spoken many times that I am the one who stopped the war because of trade, because they wanted to ensure that there should be trade between India and US and Pakistan and US. So can't trade with people shooting each other. तो ये बताया कि हमने मतलब ट्रेड का बहाना लेकर मैंने सीज फायर करवाया. That is what he is saying for many days. Now, अब इस पर वो लिख ये रहे हैं कि perhaps it is because US interest in Pakistan's store of critical minerals such as lithium, copper and rare earth. इसलिए कि यूएस शायद इंटरेस्टेड होगा पाकिस्तान में लिथियम और कॉपर और रेयर अर्थ मेटल पाया जाता है, एंड दैट इज व्हाई परहैप्स अमेरिका इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग दोस. अरे लिथियम इंपॉर्टेंट होता है ना, जैसे लिथियम आयन बैटरी बनती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल. सो दैट इज व्हाई परहैप्स दिस इज द रीजन व्हाई ही माइट बी सेइंग. अब देखो एक क्वेश्चन, नाउ वन थिंग कम्स टू आवर माइंड इज here there is third party intervention. If it is true, I mean I don't know whether it's true or not, but he is saying that now there is an agreement between India and Pakistan where we agreed that there should not be any third party intervention. What is that agreement? कौन सा agreement था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने अग्री किया था, in which year? That we will not allow any third party interference. If we want to talk, we will talk each other. आपस में बात करेंगे, तो तीसरे आदमी को नहीं बुलाना. Yes, we will not internationalize the issue and it should be talked. Yes, Simla Agreement or Shimla Agreement. And I have made a detailed class. If you have not watched it, please go and watch it. This is very, very, very important. Shimla Agreement is very important. Okay, because it कई बार editorials में news में आ रहा था बार-बार घूम-घूम के, ठीक है? So it becomes important. Okay, yes. Now let's move on further. So these are the things being talked about. It has a title of civilian prime minister Shahbaz Sharif standing in front of other who is legally concerned. तो ये तो बता रहे हैं कि prime minister के पास कम power है. All the power is actually in the hand of army chief who has promoted himself to field marshal. है ना? So a ceremony proclaimed that Pakistan is not a democracy but a religious entity. So these are the things he has earlier said also, that religious like it's more ruled by religion and less by democracy, etc. So these are the words he have already said, Pakistan's army chief, and he has promoted himself to field marshal, which is a 5-star rank officer. So ये सब चीज पता होना चाहिए ना. Now अब क्या पूछ सकते हैं? I guess they can ask it that recently, they can ask like this, that recently we have seen a Pakistan army chief becoming a field marshal. Can you please tell me one more Pakistan army chief who became a field marshal? What is the answer? ऐसे पूछते हैं. देखो होता क्या है, CLAT में करते क्या, मैंने देखा, if you see the PYQs, whatever is in the news, they are not only talking about that, they are going in the history. पीछे पास जाते हैं. अच्छा अभी तो ये न्यूज में था, पुराना वाला बताओ. Yes, so they go in the history also. Yes, Ayub Khan, he was the first field marshal, and Asim Munir has declared himself the second field marshal. Now let's talk about India. Please tell me the first field marshal of India. ये सब मैंने ऐसे बताया है वो आईएनएस विक्रांत वाली क्लास में. फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे जीके के एग्जाम में पूछा आता है. फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया. Yes, Sam Manekshaw. And second field marshal of India, although he was more senior to Sam Manekshaw. Second, दो आदमी को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया गया ना. There's one more person. Second one, KM Karyappa. है ना? उनको I think रिटायरमेंट के बाद दिया गया था. And these are two 5-star rank officer in army. अच्छा, नेवी में no one has been given 5-star rank. नेवी की जो 5-star rank होते हैं उसको क्या कहते हैं? Admiral of the fleet, है ना? ये किसी को नहीं मिला. No one has been given this post. And Air Force में एक one person has got.
आई थिंक द टर्म यूज्ड इज एयर फील्ड मार्शल, इस तरह कुछ वर्ड लिखा था, एयर फील्ड मार्शल। हाँ हाँ, अर्जन सिंह, एयर फील्ड मार्शल अर्जन सिंह। हाँ यस, कृषि सचदेवा कोशाग्र युगोत्तर। हाँ, एडमायरल ऑफ द फ्लीट जो नेवी में होता है अभी तक किसी को नहीं मिला है, ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो। तो ये सब टर्म न्यूज में आ गया तो आपको लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। अच्छा ये सब न्यूज में था, राफेल जेट, चाइनास J-10C। अच्छा बताओ राफेल जेट कौन सी कंपनी बनाती है और J-10 कौन सी कंपनी बनाती है, द नेम ऑफ द कंपनी। अच्छा यू नो द फुल फॉर्म ऑफ सैम मनिक शाह's नेम, ग्रेट कोशाग्र। राफेल जेट इज मेड बाय अ फ्रेंच कंपनी Dassault एविएशन, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, Dassault एविएशन। And this J-10 was also in the news, which is manufactured by which company? Which is I think generally used by Pakistan. So J-10 was also in the news, please tell me. हो सकता है ये पूछ लें बिकॉज उसमें से पूछेंगे, निकाल निकाल के सवाल पूछेंगे। दम रिसर्च चेंगडू एयरक्राफ्ट, वेरी गुड कोशाग्रा, प्रियांशी वेरी गुड। हाँ, चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। फिर तुर्किश सोंगर ड्रोन्स यूज किया गया था, कामिकाजे ड्रोन्स यूज किया गया था, है ना। मैंने इसे बता दिया है। और रशियास S-400 वी हैव यूज्ड, है ना। एक बैरक मिसाइल है, ये उस क्लास में मिस कर गया था, मैं बताता हूँ। बैरक मिसाइल इज एक्चुअली मेड बाय इंडिया एंड इजराइल, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इंडिया के DRDO ने मिलकर बनाया बैरक 8, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज रिमेंबर दिस, ओके, है ना। तो ये भी याद रखिएगा बिकॉज ये वाली जो क्लास है ना, दिस आज चला गया क्लास, इस क्लास में मैं मिस कर गया था बैरक 8 या बैरक मिसाइल, इंडिया एंड इजराइल बोथ टुगेदर हैज मेड इट, ठीक है, उसे बताया था बैरक। अच्छा एक और है ब्रह्मोस, ये तो बताया था उसमें। तो प्लीज टेल मी वी आर बिल्डिंग ब्रह्मोस इंडिया एंड विच कंट्री टुगेदर इज मेकिंग ब्रह्मोस। सामने में आंसर है, जॉइंटली डेवलप्ड विद रशिया, साफ लिखा है ना। सो ब्रह्मोस BRH है, ब्रह्मपुत्रा रिवर इन इंडिया, मॉस्कोवा रिवर इन रशिया, ठीक है। सो DRDO इंडिया की और ये रशिया की है, NPO, पता नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, बोथ टुगेदर हैव मेड ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। ये नाम से ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा नाम से। सो दिस वाज रिसेंटली यूज्ड एंड ऑल, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये सब टर्म भी पता नहीं, मे बी दे कैन आस्क कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। रैमजेट पावर्ड, रैमजेट एक तरह का इंजन होता है, स्क्रैमजेट एंड रैमजेट, रैमजेट से एक स्टेप ऊपर होता है स्क्रैमजेट। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग करेंटली इन डिटेल बट यू शुड नो इट कि ये क्रूज मिसाइल हो सकता है, ये भी पूछ दें कि क्रूज मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल है, मे बी। The next one, currently India has a over Pakistan as a cash and domination, इसमें कुछ डिस्कस करने का है, just seeing it, I think. चलो इसमें I think we have done more than enough. Rebuilding Jammu and Kashmir. Okay, we were talking about it that after a post-Operation Sindoor, Mr. Amit Shah, the Union Home Minister of India, has recently visited Poonch and saw check all the shelling areas and all. ये Poonch है, एकदम सामने है ना border के पास में, so of course it is actually at the forefront. So Poonch was actually by far the worst affected district. So a preliminary report submitted by a committee set up by BJP to Ministry of Home Affairs identified 1,500 houses, 690 in Poonch and 534 in Puri, which were damaged, etc. So at least 18 civilians, 14 in Poonch lost their lives, etc. तो ये सब न्यूज़ था, बारामूला, कुपवारा, राजौरी, पूंछ, ये सब आगे में एकदम यहाँ पे, ये सब पे, ठीक है। So these are at the forefront. These cities are very near to the border, and that is why they became the victim of that. Okay, yes. इसमें और कुछ, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट स्ट्रगलिंग टू मीट डिमांड्स ऑफ अफेक्टेड पॉपुलेशन, ठीक है, इसमें अब उतना नंबर्स नहीं जानना है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन आल्सो विजिटेड एटसेट्रा। ओके, let's move on further. Do not merely enroll students but equip them with skills. Means the author is talking about skill development, and we are having a separate ministry also, Ministry of Skill Development and Entrepreneur, and Skill India mission is also there, and to promote the idea of skilling, ठीक है। सिर्फ स्कूल में एडमिशन करा लिया, पढ़ाई नहीं हो रही है, स्किल नहीं दिया जा रहा, तो यस कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया, दैट इज नॉट द आइडिया, है ना। वी हैव टू गिव द स्किल आल्सो, है ना। सो ही इज गिविंग Ministry of Statistics that unemployment rate in India tends to increase with higher education level. हाँ, ये तो बहुत अजीब सी बात है,
पैराडॉक्स रिवील्स अ क्रिटिकल गैप बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। यानी जो जितना ज्यादा ऊपर पढ़ने के लिए जा रहा है एजुकेशन लेवल, उसकी जॉब अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज्यादा है। व्हाई? कैन यू प्लीज टेल मी? फॉर एग्जांपल, इफ यू आर 10 पास और 12 पास, यू विल गेट एम्प्लॉयमेंट, बट इफ यू आर बीए, एमए और पीएचडी, चांसेस ऑफ, द रीजन इज जब आप एमए पीएचडी करते हो तो आप उसी की बराबर नौकरी ढूंढोगे ना, एंड इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव डन पीएचडी, you will not do the job of the 12th pass। 12th पास वाला बोलेगा चलो भाई हम तो 12th ही पास है, चलो जो एवरेज नौकरी कर लूंगा मैं। यस, so but if someone has done PhD, will say कि भाई मैंने इतना मेहनत किया PhD का, have done hard work of doing PhD or MA or something like that, so I want that level of job। तो उसको उनके लेवल की जॉब मिलना मुश्किल होती है। एक रीजन ये है कि he has taken all the degree but perhaps he is not properly skilled, or there is a skill mismatch, the demand and supply skill mismatch। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बंदा किसी चीज की पढ़ाई किया है, मान लो उसको बीटेक या एमटेक की भी डिग्री मिल गई, ठीक है, लेकिन जो कंपनी में चाहिए वो उसको आता नहीं है, दैट इज कॉल्ड ए स्किल मिसमैच, जिसको कहते हैं, जो बेस्ट टर्म यूज किया जाता है, स्किल मिसमैच। इसकी वजह से कहते हैं द टर्म यूज्ड इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि आदमी पढ़ा हुआ तो है लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो काम का नहीं है नौकरी के लिए, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। सो दीस आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना। सो इसी की बात करें, है ना, इसमें और आई थिंक उतना डिटेल नहीं जाना है। एक दो चीजें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। प्लीज टेल मी who was the chairman of this committee? National Education Policy 2020 came. We have seen earlier national education policy, I think 1968 में आई थी, other one was in 1996, slightly improved in 1992-93, तो एक दो हो गया, तीसरा आई थी 2020 में। Who was the chairman of the committee? Yes, and he recently died also. That is why it becomes important. Yes, Mr. K. Kasturi Ranjan, right? Priyanshi Goyal, हाँ. So Mr. K. Kasturi Ranjan, he was the former chairman of ISRO also. Kasturi Ranjan, okay? तो ये ISRO के पहले chairman भी रह चुके थे earlier, and he was the chairman of the committee to recommend things related with national education policy. And I think एक दो महीना पहले, I think few weeks back, he died. So that is why you should know, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं डिस्कस करने का, ठीक है। तो ये सब बता रहे हैं डॉक्टर की एजुकेशन एंड अदर एजुकेशन एंड ऑल, ठीक है। रियल कंजम्पशन रिमेन्स पुअर डिस्पाइट द लोअरिंग ऑफ इन्फ्लेशन, हाँ ये आप समझना जरूरी है। रियल कंजम्पशन रिमेन्स पुअर डिस्पाइट लोअरिंग। अब देखो होता क्या है, एक चीज होता है इन्फ्लेशन ग्रोथ ट्रेड ऑफ, एक तरह से इकोनॉमिक्स में टर्म है। देखो होता क्या है कि अगर इन्फ्लेशन लो होगी, है ना, इन्फ्लेशन अगर लो होगी तो क्या होगा, तो कैसे समझो, मैं उसको छोड़ दो, हाँ इंटरेस्ट रेट, देखो होता क्या है, जब इन्फ्लेशन कम होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं, यस और नो? अगर कोई चीज सस्ती होगी मार्केट में, सब कुछ, एक्चुअली इसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट ग्रोथ ट्रेड ऑफ कहते हैं, हाँ। तो वो होता क्या है, जैसा मान लो रेपो रेट है ना, इसको घटा दिया आरबीआई ने या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम हो जाएगा हर चीज का, तो आप ज्यादा लोन लोगे, सो देयर विल बी मोर मनी इन द हैंड ऑफ पीपल, एक तो ये तरीका है ना, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है। सो दीस आर द थिंग्स, वन थिंग, है ना। बट हियर यहाँ पे बात हो रही है कि इन्फ्लेशन कम है, उसका एक रीजन ये हो सकता है रेपो रेट को ट्वीक करना, और भी देयर आर अदर रीजंस आल्सो, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, लेकिन मोस्टली जो है रेपो रेट से ही इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है ना। इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन जब कम है तो कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, एंड जीडीपी का नंबर, जीडीपी क्या होता है, C + I + G + NX, यही तो कंजम्पशन होता है ना, ये आपने मैथ से पढ़ा होगा। तो अगर कंजम्पशन ज्यादा होगा तो जीडीपी विल इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे क्या क्या रहे हैं, इवन अगर इन्फ्लेशन वो ज्यादा नहीं है, रिमेन्स पुअर डिस्पाइट लोअरिंग ऑफ इन्फ्लेशन, जब लोग सस्ता है, जब सामान प्रोडक्ट अगर सस्ता भी है तो वो भी लोग नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए वो डिस्पाइट लिखा है ना। और कैसे कंपेयर किया गया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखा गया, उससे पता चला कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन कब होगा, जब इकोनॉमी को पता है, बिजनेसेस को, कि अच्छा हाँ लोग सेल कर, लोग खरीद रहे, तभी लोग ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। सो दैट इज रिलेटेड विद दैट।
बट यहाँ पर वो एक चीज अजीब सी भी बता रहे हैं कि जनरली ऐसा होता नहीं है, इसलिए डिस्पाइट वर्ड यहाँ लिखा है, इवन इफ देयर इज लोअर इन्फ्लेशन स्टिल पीपल आर नॉट डूइंग कंजम्पशन। ठीक है, तो अब क्यों लोग नहीं कर रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं या उनके पास पैसा नहीं है, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट, है ना। So we have seen slowed in economic growth sector है ना, almost half the correct with a working age of 8 core sectors है ना। 8 core sectors कौन-कौन है? These are 8 core industries of India: coal, crude oil, natural gas, refined product, fertilizer, steel, cement, electricity। ठीक है, so ये 8 होता है। ठीक है, so more significant is the steep decline from last year's April। तो ये नंबर्स बस नहीं याद रखना होता है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, अच्छा एक चीज और देखना आप, आरबीआई जो है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी लगातार पिछले 2-3-4 महीना में रेपो रेट को और गिराते जा रही है, रिड्यूसिंग, यानी टेक्निकली इंटरेस्ट रेट कम होगा, सो पीपल विल हैव मोर मनी इन देयर हैंड, सो इट विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना, दाम बढ़ना चाहिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन मोर मनी होगा अगर हाथ में लोगों के, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा आइडियली, एंड दिस विल ड्राइव जीडीपी। ये बता रहे थे कि इन्फ्लेशन और जीडीपी का ट्रेड ऑफ होता है, ठीक है, यानी दोनों एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बट यहाँ पर तो ये बात की जा रही है कि अगर इन्फ्लेशन कम है तो भी लोग नहीं खरीद रहे हैं, है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, इसमें होता ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिन बाद डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा, दे विल बाय मोर एंड इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, जिसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना। ऐसे कंजम्पशन भी लेकिन बढ़ेगा, तो जीडीपी ड्राइव होगी, इसीलिए जीडीपी और इन्फ्लेशन में ट्रेड ऑफ होता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इवन इफ द इन्फ्लेशन इज लो, तो भी लोग खरीद रहे हैं, परहैप्स कि लोगों के पास मनी नहीं होगा, दैट माइट बी द रीजन, है ना। हाँ, दे आर improving savings or unpredictable situation, maybe that might be the reason। ठीक है, तो उतना डिटेल नहीं जाना, बट दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना, इज इन सेक्टर, है ना, बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर सेल प्रोडक्शन आर लोड एंड ऑल। ठीक है, फूड प्राइसेस कंट्रैक्ट फॉर 6 मंथ्स, तो फूड प्राइस भी कम हुआ है, कंट्रोल में आया है एक्सेट्रा एंड ऑल। ठीक है, तो अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है। हाँ, अब देखो इसमें एक और चीज बात हो रही है, देखो होता क्या है, आपको जीडीपी बढ़ाना है, C प्लस I प्लस G प्लस NX, तो G मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है, NX मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक चीज ये कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाओ किसी तरह, ट्राई योर बेस्ट। I मतलब होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, सो मेन यहीं से ड्राइव करो या यहाँ से चलाओ, कंजम्पशन को बढ़ाओ या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, ठीक है, दैट इज व्हाट द आइडिया इज, है ना। तो अगर आप देखोगे रिसेंट ईयर्स में प्राइवेट सेक्टर टू इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने भी अपना कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्पेशली कोविड के बाद, ताकि जीडीपी ड्राइव हो सके, कोई तो चलाए जीडीपी को बढ़ाए, सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है। और एक्सपोर्ट तो बढ़ाना चाहिए, बट उतना नहीं बढ़ा पा रहे, वी आर नॉट दैट मच, है ना। ऑटो सेक्टर नाम नहीं याद रखी होते, एक दो बार देख लेना बस, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, which of the following are not the key sectors, 8 core industries, कभी कभी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स यूट्यूबर स्कैंडलस रिमार्क्स अगेंस्ट अ सीनियर जज। जैसा तक हमने फाइंड आउट किया, तो आर्टिकल मिली उसमें, आई थिंक अ जर्नलिस्ट, दिस नेम ऑफ जर्नलिस्ट मिस्टर अजय शुक्ला, ही हैड सेड समथिंग ऑन यूट्यूब अगेंस्ट अ फॉर्मर जज who retired, जस्टिस बेला त्रिवेदी, आई थिंक उन्हीं के बारे में कुछ बोला था। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। ये क्या होता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस? सुओ मोटो मतलब होता है कि itself, मतलब no one filed a petition, the judges themselves might have seen that, हो सकता है उन्होंने खुद YouTube पे देख लिया हो, ठीक है, तो लोग भी YouTube चलाते होंगे ना, जजेस भी, so they might have seen it, तो लोग आए होंगे, तो उन्होंने बोला कि इसको जो आप हटाइए, it's a scandalous remark and this is the contempt of court, है ना। तो आप ये बताओ, contempt of court के लिए एक law, the law was made by the parliament, what is that law or in which year it was passed? तो सीजीआई साहब ने क्या कहा, फ्री स्पीच इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, वेयर दिस इज मेंशन्ड? सर आपके एनालिसिस देखते होंगे, नहीं मैंने इनका एनालिसिस नहीं करवाया है, आई वाज नॉट नोइंग अबाउट हिम, ये तो मेरे को अभी पता चला। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड which talked about criminal and civil contempt. Now can you please tell me, is there any place in the constitution which talks about contempt of court act? कहीं पर है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की बात हो रही हो?
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो रही है, इज देयर? नहीं है, ठीक है, जनरली लोगों को पता होता है कि नहीं है, बट आर्टिकल 142 है ना, वी हैव डिस्कस्ड आर्टिकल 142, इसमें लिखा है इंक्लूडिंग इट्स पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। इवन इफ अगर ये नहीं भी होता लॉ, स्टिल द सुप्रीम कोर्ट हैज कैन यूज 142, ठीक है ना, इवन फॉर पनिशमेंट ऑफ एनी कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हाँ, देखो एक चीज याद रखना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ये चीज होगा कि नहीं होगा, सो ऑलवेज सपोर्ट की होगा। आई एम जस्ट, दिस इज आल्सो अ जोक, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज़ यू डू नॉट नो कि पूरा आपने लाइन बाय लाइन तो पढ़ा नहीं है, हो सकता है कि किसी कॉमा फुल स्टॉप नहीं पे हो, है ना। But yes, that is what you should know. So it derives the power, the Supreme Court derives the power of contempt of court even from the Constitution. ठीक है। अच्छा, आपने ये नहीं बताया, ये free speech is subject to reasonable restriction, says CJI BR Gavai. Where, which article is talking about that? Which article is being talked about? मैंने बहुत पढ़ा है ये। 8 reasonable restrictions on free speech, Article 19, Clause 2. Yes, very good, Priyanshi. Fantastic. Article 19, free speech की बात कर रहा है, 19(1)(a), 19 Clause 2 talks about 8 reasonable restrictions. इन है, उन्होंने कहा CJI साहब ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है, रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिखा है, डिफेमेशन, एक तरह से आप जज को डिफेम भी तो कर रहे हो, है ना, सो दैट इज व्हाट द केस इज, बट आई हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो, मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बट जो न्यूज़ में था मैंने बता दिया बस, ठीक है। खैर, so these are the 8 things affecting the security of state, friendly relations, foreign states, public order, decency, morality, है ना, इस पर मैंने बहुत कई बार डिटेल में डिस्कशन कराया भी है, आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट। ये फ्री स्पीच का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप जो चाहे बोल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देयर इज नोवेयर इन द वर्ल्ड दैट यू कैन स्पीक व्हाटएवर यू वांट, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हो सकता है कंट्री वाइज इट मे वैरी, द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माइट वैरी, बट यस यू हैव टू बी लाइक दैट। Amid protest, Home Secretary may visit Manipur. Yes, Mr. Govind Mohan is the Home Secretary of India, Union Home Secretary, and he'll be visiting Manipur. मैंने उस पर detailed video भी बनाया मणिपुर पर, when the Chief Minister had resigned, so you can watch it. ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, who is the governor of Manipur? Governor of Manipur. Because here earlier served as Union Home Secretary. Yes, Mr. A.K. Bhalla. Right. Very good, Priyanshi and Kushal. Why I'm asking? Because अभी Union Home Secretary साथ जा रहे हैं, तो governor जो है ना, he is the current governor. He had earlier served as Union Home Secretary in India. That is what you should know. फिर एक interview था, India will have 1 billion internet users by this fiscal year, of Mr. Jyotiraditya Scindia. तो he is a Minister of Communication and Donor Ministry, है ना। एक तो उनके पास डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ही इज द मिनिस्टर ऑफ दिस। ये तो अभी नहीं है, दिस इज नॉट द करंट वन, ये भी पहले अर्लियर थे, एंड दिस इज कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ही इज कम्युनिकेशन मिनिस्टर एंड डोनर मिनिस्टर। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, देयर इज अनदर मिनिस्ट्री कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये अलग है, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, दीज टू आर डिफरेंट। ही इज हैविंग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मीटी इज आई थिंक विद मिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है, दोनों एकदम सिमिलर नाम रखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। पहले दोनों मिनिस्ट्री उनके पास थी, मिस्टर अश्विनी वैष्णव के पास, बट यहाँ पर आप देखोगे इस बार जो गवर्नमेंट बनी लास्ट ईयर, तो चेंज हो गया। यस, चीफ ऑफ डिफेंस टॉप पाकिस्तानी जनरल टू अटेंड कॉन्फ्रेंस इन सिंगापुर। हाँ, ये एक न्यूज था कि आवर चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS विल बी गोइंग टू सिंगापुर, and there will be some Pakistani army generals will also be attending that summit. उसको शांग्रीला डायलॉग कहते हैं, I hope you are aware. शांग्रीला जानते हो क्या होता है? Do you know? If you live in big cities like big मतलब metropolitan cities like Delhi and Mumbai, you must be aware of it. शांग्रीला क्या है? 5-star होटल है. I mean, I think it's there in Delhi also. ठीक है, होटल का नाम इसी नाम पर डायलॉग बनाया गया, राइट? हाँ, क्या आप लोग बात कर रहे हो? वैसे रणधीर जायसवाल, स्पोक्सपर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विक्रम मिश्री द फॉरेन सेक्रेटरी, राइट? हाँ, कनॉट प्लेस में है, आई थिंक कनॉट प्लेस में, आई एम नॉट श्योर शांग्रीला होटल है कि नहीं, बट हाँ वहीं पे कहीं पर है, इट्स देयर, ठीक है। सो शांग्रीला डायलॉग जो होता है ना, वो एक तरह का होटल के नाम पर ही नाम रख दिया गया, और उसमें लोग आते हैं, एंड फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, मिलिट्री जनरल्स, दे डू टॉक, मीट ईच अदर,
ठीक है, जैसे एक ये होता है ना रायसीना डायलॉग, अगर आप रायसीना डायलॉग इंडिया में होता है, अगर आप उसके बारे में विकिपीडिया पढ़ोगे तो लिखा हुआ है इट इज सिमिलर ऑन द लाइन ऑफ शंग्रीला डायलॉग, है ना, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट। ठीक है, तो उसमें जा रहे हैं, तो अभी इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं कि दे आर एक्सपेक्टेड टू मीट, मतलब ऐसी कोई बात अभी तक नहीं हुई कि दोनों में वहां हो सकता है पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल से मुलाकात होगी कि नहीं, बट बोथ विल बी देयर, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, रायसीना डायलॉग हुआ था, यस राइट, हाँ होता रहता, हाँ तो सब गूगल रिव्यू 5 स्टार होटल, ओह ग्रेट, सो आप लोगों ने नेट पे सर्च भी कर लिया, फाइन। सो हियर इज इंडिया, दिस इज सिंगापुर, ठीक है, आपको पता है सिंगापुर एकदम इक्वेटर के एकदम जस्ट पास से गुजरता है एकदम। खैर, अब पाकिस्तान टू अपग्रेड अफगानिस्तान सबटाइज अपॉइंट एम्बेसडर टू काबुल, तो पाकिस्तान ने अपना एक फुल फ्लेज एम्बेसडर एस्टैब्लिश कर दिया काबुल के लिए, ओके, एंड देयर वाज न्यूज़ अबाउट 100% Gazans at risk of famine, says UN एजेंसी। अच्छा, सिंस वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इट, तो ये आपको लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली Mr. S. Jaishankar, the External Affairs Minister of India, said that talks to that he had a talk with Taliban's acting foreign minister। 16 मई की न्यूज है, अभी रिसेंट कुछ दिन पहले की बात है। सो दैट इज व्हाट द ट्वीट, तो इसको फॉलो करना होगा। गुड कन्वर्सेशन विद एक्टिंग अफगान मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ओके, deeply appreciate his contribution of Pahalgam terrorist attack, underline our friendship, etc. Okay, now I am giving one homework. देखो, here is India, this is Pakistan, this is Afghanistan. अगर आपको पता होगा, before Taliban coming to power in August 2021, we had seen India had invested a lot, I think somewhere around $3 billion के आसपास कहा जाता है, or there was some proposal for that. We had built I think parliament also, and Salma Dam and many other things, and India was very much interested through going to Chabahar, Afghanistan through Chabahar port. Previous question है CLAT का, from like this, इस बोला भी कहता है Chabahar agreement is a three-way agreement between which three countries, so India, Iran and Afghanistan. This is a question of 2021 CLAT, जाके देखिएगा, and through it we can go to the Central Asia, ये Central Asia है, that is also, go and see, open 2021 या 2022 में पूछा था, I think 2021 में पूछा था, okay, so that is first thing you should be knowing. Second thing is, what is the reason India is interested in having trade or a negotiation with Afghanistan even after Taliban coming to power? So there are many reasons, मैं आपको homework दे रहा हूँ find out करने के लिए, okay, we had sent, even after Taliban coming to power, there are incidents where India has given some humanitarian aid like wheat या कुछ export वगैरह भी किया. What is the reason? ठीक है, go and find out, it's a homework, because अभी मैं नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें हमेशा नहीं बताई जाती है, find out कीजिए, ठीक है, what is the reason behind this? Okay, so this is all about today's class. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. IMEC support नहीं, IMEC में अफगानिस्तान का कोई रोल नहीं है, not IMEC, but go and find out, ठीक है. So thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.